Welcome to this math session, students. In this math session, we are starting your new chapter. Name of the chapter is quadratic equation, and this is your fourth chapter as per our maths curriculum. Quadratic equation शुरू करने से पहले quadratic polynomial के बारे में आप सब जानते हो, हाँ या ना? Can anyone tell me about quadratic polynomial? आप quadratic polynomial के बारे में जितना भी जानते हो उतना मुझे बताओ, क्योंकि वो सारी चीजें अभी हमें यहाँ पे काम आने वाली हैं one by one. So here we are going to see its 4.1 part first. It is nothing but your introduction to quadratic equation. पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन. यू कैन रेज योर हैंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर दे रहे हैं. ओके पुनीत, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप क्या जानते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? Sir, a quadratic polynomial is a polynomial with its highest power of the variable being 2, and that is the degree is 2, and a quadratic equation is an equation in which the variable's highest power is 2. Okay, thank you. थैंक यू पुनीत. आप सबको पुनीत की आवाज आई अच्छे से? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है. हाँ Yes, सर. okay. तो हाँ, मेरा ब्लूटूथ शायद वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मेरे लिए वॉइस ब्रेक हो रही थी. तो जितना कुछ मैं थोड़ा बहुत सुन पाया कि आपने ये बोला पुनीत कि इट इज योर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, है या ना? राइट, जिसकी डिग्री 2 है. Yes, sir. राइट. हाँ, अभी आपकी आवाज मुझे क्लियरली आ रही है. तो ऐसे पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. ओके. And what is the difference between polynomial and quadratic equation, or any polynomial and any equation? Polynomial, quadratic polynomial को हम ax square plus bx plus c करके लिख के आए थे. Everyone, you can tell me yes, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, विकास, polynomial और equation में क्या अंतर है? What is the difference between polynomial and equation? Sir, am I audible? Yes, you are clearly audible, Vikas. Sir, polynomial is an algebraic expression, whereas an equation is a relation between two quantities denoted by an equality. Okay, not two quantities but particularly two expressions, right? जब दो expressions को आप equal करते हो तो वो आपका हो जाएगा equation, हाँ या ना everyone? Right? One expression with another expression. Yes, sir. Expression 1 equal to expression 2. This will be your equation. तो ये quadratic polynomial है. अब quadratic equation में यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ वास्तव? If this is quadratic polynomial, सर equated to 0. yes, अगर बस मैं इसे equal to 0 लिख दूं तो ये मेरा quadratic equation बन जाएगा. ax square plus bx plus c equal to 0. This will be quadratic equation. Thank you वास्तव. अब स्टूडेंट्स आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस होल चैप्टर में. एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में उसके कोएफिशिएंट्स के लिए कंडीशन क्या थी? कोई मुझे बता सकता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो स्टैंडर्ड फॉर्म था ये ax plus by plus c equal to 0. उसमें इन कोएफिशिएंट्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर a b c? इनमें इन सब में से किसके लिए कंडीशन थी? सर a and b is not equal रियल to नंबर, 0. but Sir, one they by are real one. So a should not be equal to 0. A, B, A C square are plus real B and square A should not and be B equal should to not 0. be Sir, equal to a 0. square plus b square is not equal to. Yes. So thank you so much, students. Please raise your hand so that I can give chance to each one of you one by one. Okay. So जैसा आपने बोला वो correct. A, B, C belongs to R. वो दोनों सारे के सारे आपके रियल नंबर हैं. A, B, C are real numbers. And a square plus b square is not equal to 0. Am I correct, everyone? हाँ या ना? क्योंकि a square plus b square आपका 0 कब हो सकता है? जब दोनों 0 होंगे, राइट? कोई एक आध 0 हो सकता है, चलेगा. अब जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर यहाँ पे कंडीशन सिर्फ होगी a is not equal to 0. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. a 0 भी हो सकता है, बट जब a 0 होगा तो b 0 नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? दोनों एक साथ आपके 0 नहीं हो सकते हैं. a can be 0, but when a is 0 then b should not be equal to 0. when b is 0 a should not be equal to 0. दोनों नॉन 0 होंगे तो चलेगा, बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? एवरीवन, डू यू रिमेंबर दिस? राइट, पूर्वी, जयति, अक्षता,
एवरीवन, आदित्य जी, ओके। फहीम नाम से कौन है, किनके भाई बहन का नाम फहीम है? 7B, फहीम क्लास 7B। फिजा, आई थिंक अफसा, ओके। नाउ ये समझाया था, ये ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। प्लीज डोंट आस्क मी व्हाई a square plus b square इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। प्लीज सी द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर नंबर 3, राइट। नाउ चलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अवनी, इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है? सृष्टि, क्या यहाँ पे सेम कंडीशन होगी? सर हाँ विकास, हाँ हाँ विकास, वो आप कर सकते हो, वो लिख सकते हो, बट नॉट इन एग्जाम। ओके, यस। यहाँ पे बस आपकी कंडीशन होगी a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज b 0 हो भी गया, c 0 हो भी गया, तब भी ये क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, हाँ या ना? टेल मी, इसकी डिग्री तो 2 ही रहेगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन, राइट? डिग्री तो 2 रहेगी। बट अगर मान लो a 0 हो गया, अगर मान लो a 0 हो गया, देन योर इक्वेशन विल बी bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है? इज इट योर लीनियर क्वाड्रेटिक? यस, ये लीनियर हो जाएगा। If a equal to 0, then your equation will become linear equation. Everyone, is this clear? Right? So, for linear equation in two variable, your condition is a square plus b square is not equal to 0, and for quadratic equation, your condition is a is not equal to 0. Since अब ये दोनों condition आपको clear है, क्या आप मुझे बोल सकते हो ये quadratic polynomial के बारे में और क्या क्या पढ़ चुके हो आप? लास्ट ईयर में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें बहुत सारी चीजें हमने की थी। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ या ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके ओके, यस, वन बाय वन, जस्ट रेज योर हैंड। और अभी चैप्टर नंबर 2 में भी आप पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, राइट? तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप मुझे सारी चीजें बताओ। ठीक है, विकास बोलो। So it can have at most 2 zeros. इट हैव 2 zeros। हाँ, पॉलिनोमियल के लिए 0 वर्ड ठीक है। जिलान, ओके, हाँ जिलान बोलो। आई थिंक Sir, नेटवर्क इशू। हाँ, यस जिलान बोलो। पैराबोला, ग्राफ इज पैराबोला, इट्स ग्राफ विल बी पैराबोला। फिर ये ग्राफ के बारे में आपको याद था ये पैराबोला कैसे मिलता था जानवी? डू यू रिमेम्बर दिस? कब आपको ऊपर वाला पैराबोला मिलता था, कब नीचे वाला पैराबोला मिलता था, कब? सर ऊपर वाला पैराबोला जब मिलता था जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती थी या किसी और की वैल्यू पॉजिटिव होती थी? आर यू श्योर? एक्स की वैल्यू होती थी क्या Coefficient of ए की x वैल्यू? square. यस, ए की वैल्यू, की राइट? वैल्यू हाँ, कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यस, अगर ए पॉजिटिव है तो आपको पैराबोला मिलता था ऐसे, एंड अगर ए नेगेटिव है तो आपको पैराबोला मिलता था ऐसे। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और ये चीज को आप एक बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो बाय ड्रॉइंग वन स्माइली एंड हियर इट इज क्राइंग। क्या ये मैंने आपको बताया था स्माइलिंग एंड क्राइंग नेचर ऑफ पैराबोला एवरीवन, याद रखने के लिए? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। नहीं बताया था, राइट? ओके, तो अभी याद रख लो। हाँ, सो इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, योर पैराबोला इज स्माइलिंग। इफ a इज लेस देन 0, योर पैराबोला इज क्राइंग, राइट? एंड स्माइलिंग एंड क्राइंग से आप इजीली याद रख सकते हो। आपको पता है आप कब हंसते हो? जब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट होते हैं तब आप हैप्पी होते हो, राइट? जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब आप सैड हो जाते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिविटी के लिए ये पॉजिटिव थॉट्स, ए ग्रेटर देन 0 यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग, ए नेगेटिव यू आर क्राइंग। पॉजिटिव थॉट्स, अरे बोर्ड्स में तो मेरे बहुत अच्छे रैंक आएंगे, हाँ थैंक यू जानवी। एंड ए लेस देन 0, अरे मेरा बोर्ड्स तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ग्राफ पैराबोला। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा था? इसके अलावा और कुछ ये अल्फा और बीटा के बारे में कुछ?
हाँ yes, Avya is telling sir number of times the curve intersect the x axis is number of zeros. Very good Avya. जितनी बार वो आपके x axis को intersect करेगा वो आपको वो देगा. Yes, Aditya ji is also telling graph of quadratic equation is parabola which touches x axis 2 times or less than 2 times. Yes. So 2 times or less than 2 times means it has maximum 2 zeros. Hi Anna, everyone. It has maximum 2 zeros. And relation with x axis वो आप already पढ़ चुके हो. आपके पास 3 टाइप के रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं कि 3 टाइप्स के जीरोस अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, या एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है. राइट, ये पूरा स्माइलिंग के लिए मैंने बताया, ऐसा ही सेम क्राइंग के लिए भी होगा. ओके, चलो बोलो सृष्टि. Sir, verifying the zeros of the polynomial. वेरीफाइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस को पॉलिनोमियल में अंदर रखेंगे और आंसर 0 आएगा तो राइट. सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं. Sir, Have we उसमें learned? अच्छा, आप उससे वेरीफाई करते थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से. तो Yes. सृष्टि, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? alpha plus beta minus b by a, alpha Okay. into beta c by a. हाय अन्ना, एवरीवन. राइट, जहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस दिए तो वहां से भी आप पॉलिनोमियल बना सकते हो, यानी पॉलिनोमियल दिए तो वहां से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ला सकते हो. तो ये सब हो गया आपका बेसिक. यही सेम चीजें आपको यहाँ पे काम आने वाली हैं. जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो सेम आपके रूट्स बन जाएंगे इक्वेशन के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा वो होते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, p of x. अब ये सेम चीज आपकी हो जाएगी हियर. अल्फा एंड बीटा विल बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. Now Vanshwan is asking sir क्या ये जीरो और रूट दोनों चीजें सेम है? ऑलमोस्ट. जीरो वर्ड यूज होता है पॉलिनोमियल के साथ. जब भी आप पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हो पॉलिनोमियल के साथ यूज होता है जीरो. रूट वर्ड यूज होता है क्वाड्रेटिक या पर्टिकुलरली इक्वेशन के साथ. रूट्स वर्ड यूज होता है इक्वेशन के साथ, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर एनी इक्वेशन. वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसे बोला जाता है इक्वेशन, उसे बोला जाता है रूट. और वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, यू कैन टेल मी यस. एवरीवन, क्या यहाँ तक क्लियर है? लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा. ये सिर्फ आपका बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं फटाफट. शैल वी सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दिस क्विकली? Yes, sir. Now, so in class exercise contains total 8 questions and we can finish those questions today itself. जिसमें लेवल 1 में 4 क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 में 4 क्वेश्चंस हैं. लेवल 1 के 4 क्वेश्चंस सिंपल हैं और लेवल 2 के 4 क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो उसका भी हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे. चलो, कैन यू सी दिस लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ब्लैंक. मनोगना बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? अभी हम देख के गए. Sir, ax square plus bx plus c. दैट्स इट, उतना ही, और कुछ नहीं. Sir, is equal to 0. Very good. Because if you are writing only ax square plus bx plus c, it will be only your polynomial or quadratic expression. So this is your quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0. क्या ये चीज clear है everyone? Right? Can we see question number 2 now? Yes, sir. ये सारे क्वेश्चंस आपके इन क्लास एक्सरसाइज के लेवल 1 के क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट के ऊपर है. अभी कंसेप्ट में आपने ध्यान दिया है तो ये सब आसान है. बोलो श्रिया, ये अभी हम देख चुके हैं. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका वन वेरिएबल में. एक और चीज दी गई इलिप्स. क्या होगा आंसर? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. अभिरम्या, क्या होगा? चंदन, मनोज, हाँ चैट बॉक्स में आप दे रहे हो. वीडियो ऑन रखें स्टूडेंट्स, वन बाय वन आप वीडियो ऑफ कर रहे हो. दिस इज नॉट गुड.
बोलो वास्तव, अफसा, क्या होगा यहाँ पे? स्टेरिना, जयति, यैया, पैराबोला। पैराबोला, राइट। नहीं, स्ट्रेट लाइन पे कहाँ पहुंच गए? पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल से कंफ्यूज मत हो जाओ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट योर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो आपको याद ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका ग्राफ आपका पैराबोला है। एंड मैंने आपको बोला था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम एक ही वेरिएबल में पढ़ने वाले हैं, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट सारी पॉलिनोमियल हम एक वेरिएबल में ही पढ़ रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में पढ़ी हमने? एवरीवन। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है दो वेरिएबल में, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने एक ही वेरिएबल में पढ़ी है। कोई भी पॉलिनोमियल हमने एक ही वेरिएबल में पढ़ी है, एवरीवन। डू यू रिमेंबर दिस? राइट? Yes, sir. Yes, one student is asking, sir, for equation also it is parabola. Yes, for equation also its graph will be parabola, right? Now, question number 3. ऐसा कुछ नहीं है विकास, आप किसी दूसरे नंबर से भी इक्वेट कर सकते हो, नॉट ओनली 0। बट जब किसी दूसरे नंबर से इक्वेट करोगे, वो वाला नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो राइट हैंड साइड पे वापस 0 ही बचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो वाला नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो सी के अंदर ऐड हो जाएगा एंड वापस राइट हैंड साइड पे आपको 0 मिल जाएगा। सो इसलिए सारी चीजों को हम सी में ही कंसिडर कर लेते हैं, अल्टीमेटली 0 ही लिखते हैं। ओके, चलो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन एवरीवन? कन्वर्ट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भवानी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कृष्णा, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? समर्थ भट्ट, हाँ बोलो। Sir, ax square plus bx plus c equal to 0. Yes, ax square plus bx plus c equal to 0. This is your standard form of quadratic equation. Yes, Bhavani. Now, अब 1 by 1 जब आप पहला इक्वेशन देखते हो, इट इज 7x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 11। बोलो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए? नहीं भवानी, शायद आपका वॉइस नहीं आया था। यस, हम 11 को बस लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। यस और नो एवरीवन? राइट। यहाँ पे एलसीएम कहाँ से आ गया? यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एलसीएम क्यों लेना है? हाँ या ना? सो देयरफॉर 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? हाँ, ओके, यस। नाउ सेकंड, y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 0। इसके लिए क्या किया जाए जानवी? जानवी पी, इसके लिए क्या किया जाए? y माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 0। बोलो शिरीषा। एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? किस किस का एलसीएम लेना है? वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई आएगा सर। ओके, वाई को एलएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। आरएचएस में मतलब इधर आरएचएस में? हाँ, आरएचएस में। हाँ, फिर तो उसके तो वो 0 हो जाएगा, तो वो वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, लीनियर नहीं है। जो आपका लीनियर वाली टर्म है वो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बी 0 है बट स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स एवरीवन? या आप यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हो, या एक्स्ट्रा अगर आपको एक स्टेप करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 0y माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। आसान है स्टूडेंट्स, राइट? कैन वी मूव टू थर्ड पोर्शन? योर थर्ड इज v plus 2 v minus 2 is equal to something and that something is 0. चलो इसको कैसे किया जाए? v plus 2 v minus 2, who will try this? अभिरम्या, भावेश, v plus 2 v minus 2, बहुत ही आसान है। हाँ दर्शन बोलो। Sir, we will use a plus b into a minus b whole. Identity, right? Formulas. Yes, yes Darshan. So a plus b into a minus b will be what? A square minus b square. A square minus B square. A square minus b square, right? Yes or no?
So here a is v square minus 2 square. Yes, v square minus 4 equal to 0. सेम यहाँ पे आपकी मिडल टर्म नहीं है, यू कैन राइट दिस एज वी स्क्वायर प्लस 0v माइनस 4 इक्वल टू 0. और अगर वी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ही लिख रहे हो तो वो भी चलेगा. बोलो आसान है स्टूडेंट्स? एवरीवन, क्या आसान है, इजी है? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. बोलो एकदम इजी है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ या ना? अगर पॉलिनोमियल आपको अच्छे से आता है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है. जिसको पॉलिनोमियल में अभी भी डाउट है, मोस्ट प्रोबेबली अभी तो नहीं होगा क्योंकि आपकी एग्जाम भी हो चुकी है अवंती की और स्कूल की, तो उसको ये चैप्टर के साथ साथ आप क्लियर करते जाओ. चैप्टर के साथ साथ उसके डाउट भी पूछ लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस गिवन पॉइंट्स. राइट? हाँ जानवी, वहां पे दोनों सेम होते हैं. हाँ यस यस, जस्ट अ मिनट, कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स find the value of the polynomial at x equal to -1, x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2. क्या ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं एवरीवन? हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बिकम 0 एट विच ऑफ x. वो हमें देखना है कौन कौन से x पे वो 0 हो रहे हैं. और दिस वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड, बोलो जिस वैल्यू x की, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है उस x को क्या बोला जाता है? जीरो. यस, रूट्स ऑफ इक्वेशन. राइट? यहाँ पे रूट्स लिखोगे तो भी चलेगा, कोई आपको गलत नहीं देने वाला, बट बेटर रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन. देखो एबीसीडी में ए के साथ बी आता है, अल्फा बीटा गामा में अल्फा के साथ बीटा आता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? बट मान लो जब आप कॉन्स्टेंट्स एज्यूम कर रहे हो, अल्फा के साथ ए कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लोगे, कोई मना नहीं करेगा, बट कुछ कुछ जोड़ियां अच्छी रहती हैं. ए के साथ बी की जोड़ी और अल्फा के साथ बीटा की जोड़ी अच्छी लगती है. सो जीरोस इज कॉम्बिनेशन विथ पॉलिनोमियल, रूट्स इज कॉम्बिनेशन विथ इक्वेशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? यू कैन टेल मी यस. नाउ अब आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है सारे एक्स के पॉइंट्स पे. तो पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 1 by 1, एक्स इक्वल टू -1 सबसे पहले. हाँ आई नो. ओके, यू गाइस आर टेलिंग टू गिव इट फ्रॉम होमवर्क. यस आई कैन. पी ऑफ -1 फटाफट कर देते हैं. पी ऑफ -1, -1 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स -1 प्लस 4, -1 स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 4, it is 10. Second, x equal to 0, so 0 minus 0 plus 4, final answer is 4. Third, x equal to 1, 1 minus 5 plus 4, it is equal to 0. तो यहाँ पे जो जो वैल्यू के लिए आता जाएगा वो मैं लिखता जाऊंगा. फोर्थ इज x equal to 2. ये देख के आपको ट्रायल एरर मेथड याद आ रही होगी एवरीवन. इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम आपको याद आ रहा होगा, हाँ या ना? दिस इज -2. हाँ चलो जल्दी जल्दी बोलो. x इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा आंसर? p ऑफ 3. मनोज, प्रज्वल, क्या आएगा p ऑफ 3? अन्वित, अवनी, अनगा है? अनगा आर यू देयर? मेघना, सिक्स्थ, 4 और 7th 5. बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 इसके जीरोस हैं. So let us resume from here and let us see now your level 2 problems. A car travels a distance of 480 km at constant speed.
If the speed had been 8 km/h less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Model the situation in the form of quadratic equation. Assume that x is the original speed of car. चलो देखते हैं one by one. So a car travels a distance of 480 km at constant speed. Suppose this is the distance of 480 km. So case 1, here your speed is constant, your speed is x, right? आपको खुद ही बोला है assumption करने के लिए, so let x is original speed of car. So you know that speed equal to distance by time. X is equal to 480 by time t. Here we can take t as where t is time required to finish or to cover, finish journey or to cover 480 kilometer distance. क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सबका ध्यान यहाँ पे. प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, राइट? तभी मजा आएगा पढ़ने का, नहीं तो ऐसे छुप छुप के पढ़ने में क्या मजा है. नेक्स्ट, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, केस 2 है. नेक्स्ट केस, स्पीड आपकी कम हो रही है, योर नेक्स्ट स्पीड इज 8 km/h लेस, तो it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Distance same, time आपका 3 hours ज्यादा हो गया. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या टाइम आपका ज्यादा हो गया है? कुछ तो बोलो, हाँ या ना, राइट? वेरी गुड. सो बस यहाँ पे आप सारी चीजें रख सकते हो वन बाय वन. सो अब आपको कौन सी चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आपके ऊपर है. एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू, यस वास्तव, ये तो बस मैं आप समझा रहा था एग्जैक्टली. यहाँ पे आप टाइम को पहले सब्जेक्ट बना लोगे तो टाइम आपका यहाँ पे 480 बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप टाइम को सब्जेक्ट बना दोगे तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस इज 480 एज इट इज डिवाइड बाई s माइनस 8. s इज नथिंग बट x माइनस 8. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? 480 अपॉन x माइनस 3, 480 अपॉन x. t की वैल्यू आपके पास है, t की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8. एंड में क्वेश्चन के अंदर एक ही वेरिएबल रहना चाहिए. x उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है तो हम x में ही रखेंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. या अगर आपको यहाँ पे बोला नहीं होता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो कंडीशन से जो हम दो इक्वेशन बनाते हैं उन दोनों इक्वेशन को देखो. ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. दोनों इक्वेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फॉर्मेट है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. मैंने बोला था अगर दोनों इक्वेशन में प्लस माइनस रहेगा, हर्षित आर यू देयर, मनोगना, दोनों इक्वेशन में प्लस और माइनस रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है. पूर्वी पता चल रहा है, स्टेरिना, फिजा. बट किसी भी एक क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा. ये हमने पढ़ा था ब्रिज कोर्स के अंदर. भावेश, राकेश, रैद, क्या ये चीज क्लियर हुई? अहद, साकिब, आर यू देयर इन द मीटिंग? जानवी, राइट? ये सबको याद है. सेम चीज यहाँ पे हो रही है. सो अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है. अब आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हो वो आपके ऊपर है. सो व्हाट आई विल डू, मैं 480 वाली दोनों टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूँ. सो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये 480 उधर चला जाएगा तो माइनस 480 अपॉन एक्स. यहाँ पे आपके पास है 3 एज इट इज. 480 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ. आई विल टेक एलसीएम. x इंटू 1 विल बी x माइनस x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8. एलसीएम सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये x इंटू x माइनस 8 यहाँ पे चला जाएगा. 3 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 480. चलो x माइनस x कैंसल, माइनस माइनस प्लस 8, सिर्फ 8 बचेगा, नहीं तो एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूँ. x माइनस x प्लस 8, ये कैंसल. 16 3 जा 48, ये आपका हो जाएगा 160. सो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8 स्टूडेंट्स, 1280. So your final quadratic equation will be x square
minus 8x minus 1280 equal to 0. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आसान है? कुछ बोलना पड़ेगा? एवरीवन क्विकली टेल मी यस राइट. Yes, बस sir. आपको यही मॉडल द Yes. सिचुएशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट. यहाँ पे आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है. लेट मी शो यू अदर क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन लिखने का मैं टाइम दूंगा, बट पहले समझ लूं. मेलिसा, आर यू देयर इन द मीटिंग? शायद मेलिसा नहीं है. संचित, सात्विक, पता चल रहा है? यैया, आर यू गेटिंग दिस? यस. यहाँ पे बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, दैट्स इट. जस्ट वी नीड टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट राइट. एक बार मैं आपको ब्रिज कोर्स वाला चार्ट वापस याद दिला देता हूँ. एक बार ब्रिज कोर्स वाला चार्ट हम वापस याद कर लेते हैं, वहीं ब्रिज कोर्स से राइट. इफ यू रिमेम्बर दिस ब्रिज कोर्स, आपको याद होगा फॉर्मूला बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके दो टाइप के होंगे. आप उसमें एक्स और वाई को पहले एज्यूम करो, कंडीशन से इक्वेशन बनाओ. अगर दोनों इक्वेशन में आपके लीनियर फॉर्म आ रहे हैं, वो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है. कोई भी एक लीनियर आ रहा है या दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, या दो लीनियर के अलावा और कुछ भी आ रहा है, दोनों में प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी आ रहा हो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम 4.2, 4.3, 4.4 में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस हमें इक्वेशंस बनाना सीखना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इजी. दर्शन, आरित्य जी, हेली पता चल रहा है? एवरीवन, जिलान, सहाना राइट. चलो, तो ये वाला आपको याद होगा. अगर याद नहीं है फिर भी अब ये चीजें आपको वापस लिखनी है फॉर्मूला बुक में. हाँ, वाई नॉट ना भैया, वाई नॉट, फाइन. चलो, फॉर्मूला बुक में ये चार्ट आपको बनाना है. एंड लेट मी शो यू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चंस. A shop sells a certain number of pens in a day. The MRP of each pen was found to be 35 less than the number of pens sold in a day. On a particular day, the total revenue was rupees 250. Total revenue मतलब पता चल रहा है ना एवरीवन? टर्नओवर. टोटल अगर आप शॉप पे बैठ रहे हो तो सुबह से लेकर शाम तक आपने कितने पैसे इकट्ठा किए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. Find out the quadratic model for this situation. Assume that the number of pens sold that day is X. आपको assumption भी दे दिया गया है. अब मान लो कि एक दिन आप किसी शॉप पे बैठ रहे हो, तो दुकान वाला मालिक आके आपको शाम को यही पूछेगा, चल भाई चल रहा, कितने पैसे इकट्ठा किए हैं पूरे दिन में. दैट इज नथिंग बट रिवेन्यू. हाँ या ना? सारी कुछ मूवीज में देखा होगा आपने. सो a shop sells a certain number of pens in a day. और जिसी को उन्होंने एज्यूम किया दैट द नंबर ऑफ पेन सोल्ड दैट डे इज एक्स. वहीं से शुरू करेंगे. लेट नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे is X. The MRP of each pen in rupees was found to be 35 less than the number of pens sold in a day. तो MRP यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टेल मी. MRP of each pen, एक पेन की MRP कितनी हो जाएगी? अगेन, MRP of each pen in rupees, yes, was found to be 35 less than the number of pens sold in a day. Number of pens sold in a day is X. Yes, X minus 35. Everyone, please give me some response. Okay. चलो नेक्स्ट. चंदन, क्लियर है? On a particular day, the total revenue was rupees 250. Now, total revenue आपको कैसे पता चलेगा? अब मुझे ये बताओ, अगर एक पेन आप 10 रुपए में बेच रहे हो, टोटल 20 पेन आपने बेची है, तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा? 10 into 20. Yes or no? Everyone. अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, दैट इज नंबर ऑफ पेन सोल्ड X into MRP of each pen, that is X minus 35. अक्षता, क्लियर है? अभिरम्या, पूर्वी? हाँ सर, ये हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा क्या सर कि assume that the number of pens sold that day is X करके? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें दिया गया है. इसमें अभी हम सीख रहे हैं.
द नेक्स्ट एक्सरसाइज से हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि हम किसको x एज्यूम करेंगे और किसको नहीं। ओके, तो वो हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें दिया गया है, सो हियर इफ वी सिंप्लीफाई इट विल बी x स्क्वायर माइनस 35x इज इक्वल टू 250 प्लस 250 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, इट विल बी माइनस 250 x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 250 इक्वल टू 0। दैट्स इट, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिख कर देते हैं, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ। अच्छा एक मिस्टेक है, हाँ यश बोलो कहाँ पे मिस्टेक है? इट विल बी 35 माइनस एक्स। नहीं, आपको x माइनस ऐसा बोला है ना, 35 लेस। इट वाज 35 लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व इन अ डे। मतलब वो दिन पे अगर 500 यूनिट सॉल्व हुए हैं, मतलब सेल हुए हैं, तो इट इज 35 लेस देन दिस 500 माइनस 35 लेस देन नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व। नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ यूनिट सॉल्व हुए हैं उसमें से 35 कम है। 50 यूनिट सॉल्व हुए हैं तो 50 माइनस 35 लाइक दैट। हाँ लाइक दैट। चलो कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 श्रिया पता चल रहा है, नंदिनी क्लियर है ना सब? अनगा नहीं आई गेस, राइट? आपके अटेंडेंस भी मुझे लेनी है। अनगा, अनगा है? अनगा पता चल रहा है? हाँ सर। हाँ, the length of room is 4 meters more than its breadth। तो लेंथ उसके breadth से 4 मीटर ज्यादा है। The area of the room is 12 square meter। Model this situation in the form of quadratic equation। Assume that the breadth of the room is x meter। breadth को आपको x मीटर assume करना है। So let breadth of the room is x meter, then what will be length? Length of the room is 4 meter more than its breadth, x plus 4 meter। The moment you are getting both length and breadth, area will be equal to L into B। area आपका 12 स्क्वायर मीटर्स दिया गया, तो 12 इक्वल टू x plus 4 into x। वैष्णवी आर यू देयर? वैष्णवी आपने देख लिया? x square plus 4x, so it will be x square plus 4x minus 12 equal to 0। बोलो अब तो आसान है ना, राइट? इज वैष्णवी देयर? वैष्णवी? यस सर। हाँ, आपने गूगल क्लासरूम पे देख लिया? हाँ सर। हाँ, उसमें कोई देखा एनी एरर फ्रॉम माय साइड, कैलकुलेशन मिस्टेक और कोई क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए हैं? हाँ ओके ठीक है, आप मुझे बस उस पर टाइप कर दो, मैं कर देता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक है? हाँ सर। ठीक है, विल एडिट। हाँ वाई नॉट, वास्तव वी कैन डू दैट। हम लेंथ को y ले सकते हैं एंड फिर वो मैं दिखाऊंगा, वही सेम चीज मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि किस तरीके से हम y एज्यूम करके फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन एवरीवन। अफसा पता चल रहा है? अफसा आर यू देयर? अफसा, नाउ श्याम एंड अभिनंद टुगेदर हैव 45 marbles। both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124। what would be the quadratic equation for this? assume that the number of marbles with Shyam is x। तो दो लोग हैं, एक है श्याम और एक है अभिनंद या अभिनंद, अभिनंद ठीक नाम है। इन दोनों के पास टोटल मार्बल्स हैं 45। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया कि आपको एज्यूम करना है कि नंबर ऑफ मार्बल्स विद श्याम इज x। चलो अगर श्याम के पास x मार्बल है, उनके पास टोटल मार्बल्स हैं 45, तो अभिनंद के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी? yes 45 minus x or not, right? this will be 45 minus x everyone, easy। हाँ या ना? श्याम के पास x मार्बल है तो अभिनंद के पास 45 minus x मार्बल हो जाएंगे। अब both of them lost 5 marbles each। after losing 5 marbles each, अब श्याम के पास मार्बल्स कितनी हो जाएगी? x minus 5 marbles now।
हाँ या ना एवरीवन? तो क्योंकि 5 मार्बल्स कम हो गई हैं, और अभिनंद के पास कितनी मार्बल्स हो जाएंगी? बोलो चंदन, अभिनंद के पास कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स माइनस 5 और नॉट? अभिरम्या, मनोज, अन्वित, अन्वित पता चल रहा है? स्टेरिना, हाँ या ना एवरीवन? सो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस एक्स मार्बल्स, राइट? नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्बल्स इज 124. सो एज पर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, x minus 5 into 40 minus x is 124. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so this is 40x minus x square minus 5 4s are 20, it is 200 minus minus plus 5x is equal to 124. So therefore minus x square, now 40 and 5 it will be 45x minus 200, 124 को आप लेफ्ट साइड ले आओ या सभी चीजों को राइट साइड ले जाओ, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. सो एक्स स्क्वायर राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 45 राइट साइड माइनस 45x हो जाएगा, माइनस 200 प्लस 200 हो जाएगा, 2 + 1 3, 324 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स एवरीवन? यहाँ पे आपका 4.1 के सारे इन क्लास एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं.